हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Petitioners have approached this court challenging the order dated 21/2015 in bracket annexure P13 bracket out passed by the Financial Commissioner in bracket revenue bracket out Punjab whereby orders dated 17/9/2014 and 29/8/2012 in bracket annexures P12 and P10 bracket out passed by the Commissioner Faridkot, Division Faridkot, respondent number 2 and order dated 29/10/2010 in bracket annexure P9 bracket out passed by the collector cum subdivisional officer bracket in civil bracket out subdivision Talwandi Sabo district Bhatinda, respondent number 3 and order dated 6/8/2010 in bracket annexure P8 bracket out passed by the assistant collector first grade cum Tehsildar Talwandi Sabo district Bhatinda, respondent number 4 were upheld and partition proceedings were allowed to continue on the ground that the same are illegal, arbitrary, null and void, full stop. Directions are also sought in the nature of mandamus to dismiss the partition proceedings initiated by respondent numbers 5 to 10 full stop para. It is the contention of the learned counsel for the petitioners that in the year 1963, rather on 28/7/1963, a family private partition had taken place, full stop. On the basis of the said partition, possession of the land was exchanged between the brothers, full stop. This he asserts on the basis of the Khasra Girdavaris of village Tehsil Talwandi Sabo district Bhatinda for the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-70 in bracket annexure P2 bracket out full stop. Initially he refers to the Jama Bandi for the year 1964-65 in bracket annexure P1 bracket out to contend that the earlier Jama Bandi indicates that all the joint holders were enjoying the possession of the land as owners, full stop. Referring to further Jama Bandi for the year 1969-70, Council has further asserted that the family private partition which had taken place had actually been acted upon on the ground with the partition of the land and exchange of possession, full stop. He has referred to the site plan placed on record by the petitioners depicting the location of the land and assigning reasons as to why the petitioners were given more land as compared to the other brothers in the partition, full stop. He states that there was no passage given for Khasra number 781 which was given to him in the partition, whereas Khasra numbers 782, 783 and 784 were on the sanctioned passage
and therefore there being no connectivity with this land, and since the adjacent land, that is Khasra number 775, was exclusively ownership of the petitioners, full stop, he had agreed for the said arrangement. Referring to annexure P15 depicting the canals for irrigation, he further asserts that the other reason as to why the petitioners were given more land was that the canals which supplied water to the private respondents passes through the land of the petitioners, which share was given to them, full stop. He thus contends that because of the inferior quality of land, and for the reason that the canal had to go through the land of the petitioners, which also utilized some land, the petitioners were granted more land, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये हो गया है, 90 प्लस की स्पीड है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट नंबर्स थोड़ा ज़्यादा आए हैं तो स्पीड ऊपर नीचे हो गई है, तो थोड़ा टफ हो सकता है लगे, लेकिन डिक्टेशन अच्छे से कीजिएगा। और हमने एक जगह प्लूरल और सिंगुलर में थोड़ा वो कर दिया है, क्योंकि बुक थोड़ा साइड में मुड़ी रहती है तो समझ नहीं पाए थे, और एक जगह फुल स्टॉप। तो इसमें कुछ नाम आए हुए हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। साबो सर्किल बी लगा के सर्किल बी बनाइए अबव द लाइन, और ओ की वॉवल साबो। तालवंडी के लिए पूरा ही बनेगा तालवंडी, ठीक है। दो तरीके से बनाइए, एक तो टी अबव द लाइन टी, अपवर्ड एल, और वे का स्ट्रोक, फिर एन, फिर डी, पूरा बन गया ये। और एक है टी में एल का हुक लगा दीजिए ताल, और वे बना के एन डी कर दीजिए, ठीक है। एन और डी पूरा, और ई की वॉवल, तालवंडी, ओके। और तालवंडी डिवीज़न फरीदकोट आया है ना। तो फरीदकोट के लिए क्या करिए, नॉर्मल वर्जन जो बनाते हैं हम एफ आर का, एफ में आर का हुक, एफ में आर का हुक बना दीजिए, और डी निकालिए और के हाफ जोड़ दीजिए, मतलब के हाफ रहना चाहिए, और ओ की वॉवल के आफ्टर में, तो फरीदकोट हो जाएगा, ठीक है। और क्या था, अच्छा गिरदावरीज़ कुछ आया है, तो गिरदावरीज़ शायद पंजाब हरियाणा में कुछ ज़मीन के मामले में कुछ टर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिए, गिरदावरीज़, तो इसके लिए गेआर बनाइए, थ्रो द लाइन डी ले जाइए, और फिर डब्ल्यू की डबलिंग कर दीजिए अपवर्ड, ठीक है, उसमें आर निकल आएगा, गिरदावरीज़। और सर्किल लगा दीजिए, ई की वॉवल डब्ल्यू की डबलिंग करके सर्किल लगाकर ई की वॉवल आफ्टर में रख दीजिए, ठीक है। गिरदावरीज़ हो जाएगा, ये नया वर्ड है, ठीक है। और खसरे के लिए क्या करिए, खसरा बन जाएगा अबव द लाइन के, सर्किल अपवर्ड आर, खसरा हो गया, उसी में नंबर का ग्राम लॉग जोड़ दीजिए तो खसरा नंबर हो जाएगा। अच्छा भटिंडा आया है ना, भटिंडा के लिए भी दो तरीके से बना सकते हैं। बी बनाइए अबव द लाइन, फिर टी बनाइए, टी को हाफ कर दीजिए, हाफ नहीं भी करेंगे तो वो हम एक तरीके से समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बी बनाइए, टी बनाइए, एन का हुक लगाकर डी बना दीजिए, और डी में दैट की वॉवल आ की आफ्टर में, ठीक है, फर्स्ट प्लेस। तो ये, और बी को काट देंगे तो भा हो जाएगा, भटिंडा हो जाएगा। अब पूरा भी बना सकते हैं आप, बी बना के टी बनाइए, और फिर एन का स्ट्रोक पूरा, और फिर डी, ठीक है। पहली वाली आउटलाइन में एन के स्ट्रोक की जगह एन का हुक लगा दिया गया, तो थोड़ा एक आउटलाइन बच गई, मतलब छोटी हो गई। और ये हो गया जमाबंदी के लिए क्या करिए, जमा बना के जमाबंदी, एम में अगर बी जोड़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एम कर्व होता है। तो जमा बना के हाफ बी और एन का हुक लगा के उसको कट कर दीजिए बीच से, जैसे नो बडी वगैरह आता है ना, एवरीबडी नो बडी आता है, तो एवरी बना के या नो बनाकर हाफ बी से कट कर देते हैं,
ठीक है, ताकि समझ में आ जाए ये नोबडी है। अब पता नहीं आप लोग कैसे करते हो नोबडी और एवरीबडी के लिए, लेकिन ऐसे ही यही पैटर्न पे हमने ये बताया है जमा बंदी के लिए। जमा बना के बी, हाफ बी और एन के हुक से काट दीजिए जमा बंद, और उसमें ई की वॉवल जमा बंदी हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरी आउटलाइन बनानी है आपको तो जमा बनाइए, फिर बी जोड़कर एन का हुक लगाकर फिर डी बनाइए, वो अटपटी हो जाएगी और जमा बंदी बहुत कम आता है। ठीक है, इसलिए आप इसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा अटपटी आउटलाइन इसलिए है क्योंकि एम कर्व होता है, एम में बी बनेगा तो वो कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दीबाजी में ज़्यादा बड़ा छोटा भी बन सकता है। और अगर जमा बना के बी एन से काट देंगे आप, मतलब हाफ बी और एन के हुक से काट देंगे आप, तो जमा बंद आपको याद रहेगा ये जमा बंद है, तो जमा बंदी ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा दिमाग में कि हाँ जमा बंदी आया था। ठीक है, अब मेरे आउटलाइन बनाने का तरीका देखिए थोड़ा डिफरेंट है। हम कोशिश करते हैं कि रिलेवेंट आउटलाइन लगे और हम रिकॉल कर सकें आउटलाइन बनाकर कि ये क्या हो सकता है ना। एग्जैक्ट वो ना बना करके हम उसको रिकॉल करने वाली आउटलाइन बनाते हैं कि हमको याद आ जाए आउटलाइन देख के कि ये आउटलाइन क्या रही होगी, मतलब क्या वर्ड रहा होगा। जमाबंदी हो गया, और कुछ नहीं आया। आप उसमें वो कर दीजिएगा कमेंट वगैरह, कोई आउटलाइन अगर रह गई हो। ठीक है, और अभी बीच में कुछ हमको अपने पेपर वर्क्स कंप्लीट कराने थे, इस वजह से बीच में गैप हो गया। ठीक है, चलिए फिर अगले डिक्टेशन में मिलते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा।